Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammed Qasim, President of Urology. Today, my topic of presentation is surgical management of BPH-related lower unit symptoms and its minimally invasive surgery. My moderator is Dr. Shola. Thank you, sir. Learning objective is understand the various type of minimally invasive surgery, mechanical approaches, thermoablative technique, injectable and emerging modalities, clinical indication and patient selection. And we also discuss GRP, its setup, technique, and complication management. This is a shift of conventional therapy to the minimal invasive surgery. In between medical and traditional surgery, minimal invasive surgery provide balance by improving the relief of symptoms with less morbidity, faster recovery, and preserve the sexual function. So basically, this particular chart explains that why there are so many procedures for this prostate gland, because we are still searching for the best. Because it is related with like your urinary tract, it is related with your sexual life, it is related with your aging as well. So every procedure has some like positive things and with some negative things. So it is sort of evolutionary process. They adopt a procedure, they do it for years, they do trials, they look for the shorter and the longer outcome, and the procedure might stay and might discard at all. So we'll be discussing few of them in preceding slides. There are four primary modalities based on the mechanism of action. Mechanical cause physical repositioning of prostate tissue, and thermoablative cause thermal energy induced tissue necrosis, and injectables chemical agents cause tissue ablation, and robotic assisted image guided precision ablation. First one is a mechanical minimal invasive surgery, is a prosthetic urethral lift, also known as a urolift. Its mechanism is we use a permanent monofilament suture with encores, which cause mechanical retraction of lateral prostate lobe and create a pattern urinary channel. Key advantage is no tissue removal or thermal ablation, preserve the sexual function, and is outpatient procedure. It is suitable for prostate volume 30 to 80 gram, contraindicated with obstructed median lobe, and 4 to 5 implant placed bilaterally. Procedure duration is average 45 minutes, same day discharge, and minimal catheterization of 24 to 48 hours. Proven clinical benefits 50% IPCC reduction at 3 months, 44% QMX improvement sustained at 5 years, 100% ejaculative function preservation, and retreatment rate is 13.6 at 5 years. This is a short video of Eurolift. The UroLift system is a proven minimally invasive technology designed to relieve urinary symptoms and improve quality of life with minimal side effects for men with an enlarged prostate caused by benign prostatic hyperplasia, or BPH. The UroLift system procedure begins by inserting an implant delivery device into the urethra. An attached endoscope provides visibility to the obstructive prostate. On reaching the area blocked by the enlarged prostate, the obstructive prostate tissue is moved aside. Following a trigger press, the device inserts a fine 19-gauge hollow needle across the prostate and deploys the implant through the needle. The implant is a nylon suture fixed in place with a thin metal tab at each end. Depending on the prostate size and blockage severity, the doctor inserts several more implants the same way. Typically, 4 to 6 implants are placed into the prostate. The outer capsule of the prostate is firm and provides a solid anchor, which allows the implants to lift and hold the enlarged prostate tissue. As the sutures are shorter than the prostate depth, the prostate laterally compresses. This reduces pressure on the urethra and provides immediate visible results so urine can flow freely. It's a mechanical solution to a mechanical problem. The minimally invasive procedure requires no cutting, heating, or tissue removal. This procedure avoids erectile and ejaculatory dysfunction. Urolift system is less popular now because of the implant-related issue. It causes irritative symptoms or migrate of implant needs secondary surgery, which is most difficult one. Mechanical minimally is the second is I-10 temporary device. We use a nitrile stent deployment, would cause ischemic necrosis and use the tissue remodeling. Duration is several days of controlled tissue modification as a non-permanent mechanical intervention. So any idea, Dr. Ahmad, why Eurolift when you can easily cut the prostate? Why you need to put such stents and things like this?
So the procedure is minimally invasive, and TRP is also minimally invasive surgery. it, as he mentioned, it can also be done under local anesthesia. So the Right. patients So one who thing, are unfit for general anesthesia right? can undergo this procedure. Also, the patients who are on blood thinners, in which the सही है, agreed. What next? इसके अलावा इसमें जो है Dr. Alia wants to add something. Yes, that is important as well, right? जो मेजर डिफरेंस आपको सारे प्रोसीजर्स में नजर आ रहा होगा ना, जो एक लगता है कि एक पॉइंट रीच करना है सबने, वो यही है कि आप प्रोस्टेट से जान भी छुड़ा लें और आपके सेक्सुअल फंक्शन भी प्रिजर्व रहे. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, मोस्ट ऑफ देम आर अनफिट सर्जिकली अंडरगोइंग प्रोसीजर. सो ज्यादातर जितनी भी न्यूअर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, दे आर मोर ऑफ अ के लोकल में हो जाए, उसमें एनेस्थेटाइज ना करना पड़े पेशेंट को. दैट इज इम्पोर्टेंट. This is a short video. The iTind is a safe, quick, and minimally a rigid cystoscope is inserted into the meatus and guided up the urethra until it passes the bladder neck. The iTind device is inserted into the sheath in a crimped configuration and pushed through until it is released into the bladder. The cystoscope sheath is withdrawn, the optics are reinserted, and the cystoscope sheath and optics are guided back in parallel to the iTind delivery system for visualization. The iTind device is manipulated to bring the anchoring leaflet into the 6 o'clock position and distal to the bladder neck. The cystoscope is removed. The guide wire is cut at its proximal end and removed, exposing the retrieval suture and leaving the iTind in place, where it will remain for only 5 to 7 days. During this time, the 3 cutting struts of the iTind device expand and exert pressure on the prostatic urethra and bladder neck. This gradual and continuous pressure creates 3 deep longitudinal incisions through ischemia and necrosis at 12, 5, and 7 o'clock. This is also less popular because of implant migration. So एक तो इसकी इंसर्जन जो है वो बहुत टेक्निकल है. यू हैव टू बी एट द राइट पोजीशन, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? एंड देन व्हाट अबाउट द पेशेंट रिस्पांस, कि वो इस्कीमिया नेक्रोसिस जो वहाँ करेगा, उसके बाद इस तरह के प्रॉपर इंसिजन्स आएंगे, जैसे कह रहे हैं 12, 5 एंड 7 o'clock पे इंसिजन्स आएंगे नहीं आएंगे. दैट इज इंपॉर्टेंट विद इन 5 days. एंड देन जब आप लिटरेचर में पढ़ते हैं तो इसका जो रिमूवल है ना, दैट इज डिपेंडेंट ऑन दैट थ्रेड पार्ट, कि आपने उसके बाद में उसको रिमूव कर देना 5 days है, राइट? 5 days पे. दैट इज अगेन अ प्रॉब्लमेटिक पार्ट. सो ये भी कोई इतनी ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड या फेमिलियर टेक्निक नहीं बनी. Second is a thermoablative minimally surgery, water vapor therapy, also known as a RISU. This is a convective water vapor causes coagulative necrosis and result in tissue volume reduction. Temperature is a 103 centigrade steam delivered. Method is 3 to 9 second control pulses and up to 15 location in lateral and median lobes. Done in local anesthesia with optional sedation, the outpatient procedure. Key advantages is preserve sexual function 100%. Rapid symptom relief within 2 to 4 weeks, durable results sustained in 5 years, and minimal catheter time 3 to 5 days. Long-term efficacy data is 48% mean IPCC improvement and 49% increase in peak flow rate, low retreatment rate 4.4%, 5-year follow-up, and sexual function preservation 96%. This is a short video. I'll resume. Perplasia, or BPH. During each 9-second treatment, sterile water vapor is released throughout the targeted prostate tissue. When the steam turns back into water, all the stored energy is released, causing the cells to die. Over time, your body's natural healing response removes the dead cells, shrinking the prostate. With the extra tissue removed, the urethra opens, reducing BPH symptoms. Most patients begin to experience symptom relief in as soon as 2 weeks, and maximum benefit will occur within 3 months. So those who
had an experience of workshop last month regarding prostate. Must have experienced this on simulator. And some of our faculty were having a real-time experience with this procedure. I guess in last year, December, we had a small workshop where 5 of these procedures were done at SIUT, and we are following those patients. Last follow-up was done around 3.5 months post-procedure, and I'm telling you, the results are quite satisfactory. All of them are catheter-free, all of them are symptom-free, and all of them are preserving their sexual function. Though the initial period was painful, we had complications like 2 of our patient failed trial without catheter initially, and they were again given trial at 6 weeks, then become successful. And last time we performed UFM, I guess 4 weeks back. Though the data of UFM, 2 of them were having like 18 or 20 or for QMAX of 18 or 20, and rest over having like 12, 13 QMAX fall in this range. But when you talk to the patient, they are symptom free. They don't want anything further for their disease. So the results are quite satisfactory for this procedure. And this procedure is now being adopted in multiple centers in Karachi and in Pakistan as well. I would like to, Dr. Mazahir bhi hai हमारे साथ? Yeah, Dr. Pradeep है. डॉक्टर प्रदीप है जी है हाँ डॉक्टर प्रदीप कैन यू हियर मी प्लीज जी भाई बोले। तो इसमें आपका वहाँ पे अब ये रेज्यूम कितना पॉपुलर है और लोग कितना रेगुलरली कर रहे हैं, या फिर जो दूसरी टेक्नोलॉजीज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें से कुछ आपका एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे है अवेलेबल या नहीं? थैंक यू। आई थिंक यहाँ पे बस पॉपुलर तो यही मेन गोल्ड स्टैंडर्ड इज TURP Right. and second is I think resume. So Right. resume nowadays we are quite often we do here in our hospital as well. So yeah. Right, sir. Or as you said, short term benefits are better with resume. Patient used to go home same day. And usually a trial of catheter is after 3 to 5 days. It depends upon the size of the prostate and the overall co-marks and the prior QMAX, history of retention, UTI. So they all contribute to the failure of the TWOC. Yes. And I had one patient, and after 7 days he had prostate of 80 gram. So after resume, after 7 days when I removed the catheter, it was trial failed. So again, as you said, reinsertion of catheter, keep the catheter for longer duration, at least 2 to 3 weeks, and then you remove. And after that, the recovery is always depend upon the size of the gland as well. Right. If somebody has a smaller prostate, 40 gram, 50 gram, the chances that he will require that TWOC will be successful in 1 or twice with shorter duration. But somebody who has a larger prostate, if TWOC failed, he may require a longer catheterization, like 3 to 4 weeks. It depends, as you said, 6 weeks. And eventually now he's doing well. He's happy. He's medicine free, and sexual functions are preserved. Till now, I think it has been more than 8 months, and he did not require any other options, medical treatment, or even other intervention. So short-term results are better with all these upcoming or newer these interventions. But long-term, we really don't know. Maybe after 2 years, 1 year, he may need a procedure, same procedure or some other procedure. It all depends. But initial experience is satisfying for the patient and for us. Like normally when we do TRP, it is a kind of a more invasive procedure. The risk is more post-operative bleeding, infection, longer hospital stay. So, but these modalities, you will not find anything. Okay, patient go bleeding over here. You have to, give the traction, take back to the OR, do whatever you can do. So I think in these modalities, you will not find that hustle. राइट सर। डॉक्टर शवाब जी सर। सर जी जी सर। प्रदीप साहब क्या हाल है आपके? सर ठीक सर, आप सुनाए सर। हाँ क्या हाल है, सब ठीक? जी जी सर। अच्छा मेरा एक सवाल था, सॉरी मुझे सर मैं ये रिज्यूम के लिए सवाल था कि
हर प्रोस्टेट साइज को वी शुड डू इट, और देयर इज साइज लिमिटेशन? मैं थोड़ा लेट आया, अभी पहुंचा, तो शायद आपने बता दिया पहले ही, मगर सर इसमें जो स्टैंडर्ड साइज जो इन्होंने बताई है ना, जो बूस्टन साइंटिफिक ने अप टू 75 to 80 जो है ना इन्होंने बताई हुई है, वहां तक आप कर सकते हैं। बट नाउ पीपल आर डूइंग इवन लार्जर ग्लैंड साइज, इवन 100 120 ग्राम दे आर डूइंग इट। ओके। लेकिन सर उन्होंने जो बताया फ्रॉम 35 to 70 इज द 80 मैक्सिमम 80। 80 ग्राम है। और इसमें हम्म। डॉक्टर जमशेद आए थे हमारे पास वर्कशॉप के लिए लाहौर से, तो ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग इट लाइक अकॉर्डिंग टू हिम इट डन आई गेस समवेयर अराउंड 100 के करीब वो कर चुके हैं रेज्यूम। सो उनका एक्सपीरियंस भी ये था कि इसमें से जो प्रोसीजर फेलियर होता है ना, तो एक तो ये कि इसमें डोजेस का यहाँ लिखा था कि 15 लोकेशंस, इट्स टोटल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ग्लैंड। लाइक अगर जैसे डॉक्टर प्रदीप वाज सेइंग 30-40 ग्राम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो वहाँ पे ऑन एवरेज जो है वो 6 ट्रीटमेंट्स हैं, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम टू मेजर। ये जितने यहाँ पे रेजिडेंट्स बैठे हैं जिन्होंने यहाँ पे वर्कशॉप की है रेज्यूम के सिमुलेशन पे, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि यू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द ब्लैडर नेक, और उसके बाद आप जो है वो 1 सेंटीमीटर का गैप रख के एंड देन यू डिसाइड टू डोज के 3 इस लैटरल लोब में दे दी, 3 इस लैटरल लोब में इंजेक्शन, जो 9 सेकंड की ड्यूरेशन का आप इंसर्ट कर रहे होते हैं। सो ये जो इंजेक्टर आता है इसमें टोटल मेरे ख्याल है 15 डोजेज होती हैं, दैट इज द कॉस्ट इफेक्ट। और उसमें से आप जो है वो अगर आप वो 100 ग्राम का करना है तो उसको तो आपको शायद पूरी लगानी पड़ जाएंगी, लेकिन वही अगर आप 50 ग्राम के 2-3 केसेस कर रहे हैं तो वो शायद एक उससे आप 2 या 2.5 केसेस कर सकते हैं। जी सर, डॉक्टर प्रदीप आपके लिए सवाल है। डॉक्टर मुनव्वर सेइंग कि 30-40 ग्राम में तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव होता है, तो ये इतनी फैंसी हेलो। चीजें करने की आपको क्या जरूरत थी? नहीं यही है सर, फर्स्ट ऑलवेज ट्राई टू कीप द पेशेंट ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो तो यही रहता है। बट इफ समबडी हु डज नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट, और या वो दवाइयाँ नहीं लेना चाह रहा है, सो उनमें ये ऑफर होता है, बट इट इज नॉट इन ऑल पेशेंट्स। तो सारे 60-70 वाले पेशेंट भी हैं, इफ दे आर हैप्पी विद देयर मेडिसिन, सो वी डोंट ऑफर एनी इंटरवेंशन। सर मेरा मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि सर्जिकल इंडिकेशन तो चेंज नहीं होगी। पहले तो आपको सर्जिकल इंडिकेशन देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट पे खुश है तो फिर तो आप कोई भी ट्रीटमेंट उसको ऑफर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे हमारे पेशेंट थे वो ऑल ऑफ देम वर हैविंग अ फोरिस कैथेटर, और उन सबके ट्रायल फेल्ड थे। तो उसमें से अगर कोई पेशेंट है, चाहे उसको 30 ग्राम ही क्यों नहीं है, लेकिन उसका ट्रायल फेल हो रहा है और उसको आपने यूडीएस में देख लिया है कि ब्लैडर डिसफंक्शन नहीं है या मिनिमल से ब्लैडर डिसफंक्शन है, सो ब्लैडर इज नॉट एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द ट्रायल फील्ड, तो उसमें तो आपको डेफिनेटली इसको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि टीयूआईपी भी तो हम कर ही रहे हैं 30 ग्राम में। सो अगर आपको लगता है इसमें, पर इसमें भी एक अगर आपको प्रोस्टेट मिल ही नहीं रहा जिसमें आप डोज दें तो फिर डेफिनेटली प्रोसीजर नहीं होगा। लेकिन क्योंकि जिन जगहों पे ये ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे फ्लेक्सिबल ऑफिस सिस्टोस्कोपी का रिवाज चल पड़ा है, तो वो लोग तो सिस्टोस्कोप डाल के पहले देख लेते हैं कि इसके लेटरल लोब्स हैं नहीं है और इसको करना है नहीं करना, तो इस वजह से भी शायद ज़्यादा है। अच्छा सर, इसमें डॉक्टर प्रदीप एक चीज़ और थी फेलियर के हवाले से, कि प्रोसीजर फेलियर के हवाले से, फॉर एग्जांपल हम 3-4 मंथ्स पे चले जाते हैं, वो कैथेटर फ्री नहीं हो रहा, और या फिर वो सिम्टम फ्री नहीं हो रहा, तो इसमें मतलब मेरे ख्याल में तो हमेशा से ऑप्शन रहेगा कि आप बाद में जाके टीयूआर कर दें या फिर आप दोबारा रेज्यूम कर दें। मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? ये मैंने असल में, मैं अभी लास्ट ईयर गया था एक उसमें ना, तो वहां पे ये कि दे आर सम पीपल हु आर डूइंग री रिज्यूम इवन आफ्टर सर्टेन टाइम 1 ईयर, यस। लेकिन कुछ हैं सो दे डोंट ऑफर सेम, वो फिर स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड जो है टीआरपी पे जाते हैं। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। तो आपकी इंडिकेशन जो है ना, मतलब अगेन एक्सपीरियंस और इंडिकेशन जो है ना वो केस टू केस वेरी करेगी, बट देयर आर सम पीपल हु आर डूइंग री रिज्यूम भी कर रहे हैं। और दूसरा ये था, इफ समबडी हु हैज प्रायर रिटेंशन, उसमें मतलब ये देखा गया है कि इवन इफ यू डू रिज्यूम, लेकिन उसके आपके जो रिजल्ट्स हैं इतने डिजायरेबल नहीं होते हैं। सो इफ समबडी हु हैज रिटेंशन, इट मे बी चेंज, आई डोंट नो। तो इसमें यहाँ पर तो वी ऑफर, हम टीआरपी की तरफ ही जाते हैं। राइट। मतलब उसमें रिज्यूम, मतलब अगर कोई पेशेंट फिर भी बोले तो देन वी कैन ऑफर रिज्यूम, बट मोस्टली वी डू टीआरपी। टीआरपी की तरफ से। तो मे बी शायद ये अभी, ऑल्दो इट इज नॉट अ काउंटर इंडिकेशन, इट मे बी एक्सपीरियंस, शायद आगे चल के ये सही साबित हो या गलत, वी डोंट नो। लेकिन एक चीज है कि इफ समबडी हु हैज रिटेंशन, सो बेटर टू गो विद द स्टैंडर्ड या गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन। राइट सर, चलें आगे बढ़े।
The next one is transurethral needle ablation. The mechanism is use low-level radiofrequency waves at 100 centigrade through the needle, which causes thermal necrosis of the tissue and result in shrinkage of prostate. The ideal candidate for this procedure has prostate size less than 80 gram and mainly lateral lobe enlargement. Indications: moderate lower urinary symptoms, size less than 80, and patient preference unfit for major surgeries like QRP. Key advantages is daycare surgery and minimal invasive bleeding preserve the sexual function. Transducer microwave thermotherapy. This mechanism is used the microwave are delivered through the antenna embedded catheter. Microwave heat the prostate at 45 to 80 centigrade and create the thermal necrosis and result in shrinkage of prostate over weeks. The ideal is size is 30 to 80 gram, no median lobe enlargement. And advantages: OBD basis, no GA required, less bleeding, and safe for comorbid patient. Irritated symptoms can be persist for several weeks after this procedure and higher retreatment rates. There's a safe and effective non-surgical treatment for BPH and chronic non-bacterial prostatitis. The Thermospect transurethral microwave thermotherapy system from more invasive treatments, making it a commitment in quality of the compact Thermospect system with its computer-controlled microwave positions suited to surroundings ranging from small clinics to large urological departments. TUMT, transurethral microwave thermotherapy, creates heat by properly locating a microwave antenna in the prostate, destroying hyperplastic prostate tissue to facilitate urinary outflow. Thermospect's unique applicator enables various positioning options and simplifies the procedure with a single protocol for all prostate sizes. Thermospect treatment is fast, efficient, and cost-effective. The only consumable is the catheter. This minimally invasive procedure requires So, in summary, अगर आप इसको शॉर्ट करेंगे तो द डिफरेंस बिटवीन रेज्यूम एंड ट्यूना इज बेसिकली कि आप वहाँ पे एक वेपराइज वाटर जो है उसके ज़रिए प्रोस्टेट को जो है वो नेक्रोस करवाना चाह रहे हैं, जबकि जो आपका ट्यूना है तो यहाँ पे आप सेम काम आरएफएस से करवा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप TUMT की बात करते हैं तो दैट इज समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, बिकॉज ये बिल्कुल ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है, यू डोंट नीड अ OR फॉर दीज थिंग्स। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस SIUT का भी है, इस बारे में डॉक्टर असद अक्सर शेयर करते हैं कि थोड़ा टाइम यहाँ पे भी ये डिवाइसेस आई थी TUMT की और कुछ प्रोसीजर्स उन्होंने किए थे या सिर्फ ट्रायल बेसिस पे। सो इसमें सिंपल यही है कि आपको कैथेटर के थ्रू जो है वो वहाँ पर डोज डिलीवर करनी है, एंड द प्रिंसिपल इज थर्मल एनर्जी। अब उस थर्मल एनर्जी की वजह से आपका यूरेथ्रा भी अफेक्ट होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इसीलिए इन केसेस में इरिटेटिव सिम्टम्स आपको बाद में ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिक जो अब प्रोसीजर आगे चला इसमें से वो रेज्यूम था, अब ट्यूना भी ड्रॉप हो गया और थर्मो भी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट प्रोफाइल थिंग लाइक दिस। नेक्स्ट प्लीज। कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है वो। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। Another is a robotic assisted minimally invasive surgery, Aquablation therapy. How it works: the real-time translate ultrasound imaging map the prostate anatomy. A robotic system guide the high-velocity saline water jet with millimeter precision. Selective tissue ablation while preserving the new vascular bundles, and continuous visualization prevent the damage to critical structure. Key advantages are minimal learning curve for surgeons, consistent and reproducible outcomes, preserve the sexual function, and suitable for prostate 30 to 150 gram. Clinical evidence: 5-year data shows a sustained symptoms improvement with excellent safety profile. These are indications: size 30 to 150, moderate to severe lower urinary tract symptoms, failed medical therapy, and patient priority, preserve the sexual function and complex anatomy. Safety profile is sexual function preservation 95%, erectile function no significant decline, and incontinence rate is less than 1%. Retreatment rate is less 4.3%, comparable bleeding risk. These are the injectable and emerging minimal invasive surgery. Chemical and So basically all of them were like under trial and I guess none उसके आगे बात किसी में भी नहीं गई। इसमें यही था कि आप कुछ ऐसा इंजेक्ट कर दें उसके अंदर जिससे वो नेक्रोज हो जाए और बात वहीं पे ख़त्म हो जाए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई की गई हैं। ये यहाँ पे सिर्फ 3 मेंशन है, लेकिन अगर आप लिटरेचर में देखेंगे तो आपको आई बिलीव के 1 डजन के करीब चीज़ें मिल जाएंगी जिसपे वो किया गया है। एंड द पर्पज इज सेम, जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन में बताया था कि दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर द बेस्ट, जिसमें साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी ना हो, जिसमें लॉन्ग टर्म आउटकम भी हो, जिसमें सिक्योरिटी भी प्रिजर्व रहे। सो दैट इज़ वाई दे आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स।
So this is the gold standard. आज के ज़माने में जब हम बात कर रहे हैं तो still this is the gold standard. Holipis was taking over कि आप इनिक्लिएट कर रहे हैं और उसके बीच में फिर रेज्यूम आ जाता है, तो अब वो दोनों आपस में खेल रहे हैं. But right now TRP is still the gold standard. The TRB is since 1947, 5% patient report better or much better outcomes, sustained symptom relief for up to 12 years, peak flow improvement 10 to 15 ml per second, and retreatment rate only 1 to 5% in 5 years. Indication for TRB, medical trophy failure, recurrent acute urinary retention, secondary bladder strong, refractory hematuria, and obstructive nephropathy. Contraindications, absolute active urinary tract infection, inability. एक स्लाइड पीछे कीजिएगा प्लीज. अच्छा, इसमें जो पहली इंडिकेशन है ना मेडिकल थेरेपी फेलियर, इसके बारे में जो अपडेटेड गाइडलाइंस है ना वो ये कहती हैं कि अगर आपका एक पेशेंट है जिसको आपने अल्फा ब्लॉकर पे रखा या साथ में जो है आपने ARI दे दिया या फिर एंटीकोलिनर्जिक्स आपको देने पड़ गए, बट यू आर सस्पेक्टिंग कि ये पेशेंट जो है वो ब्लैडर डिसफंक्शन में गया है या कंटिन्यूसली जा रहा है, वो आप असेस कर सकते हैं बाय मेजरिंग द PVR, बाय लुकिंग एट द आर्किटेक्चर ऑफ द ब्लैडर के वो थिक वॉल्ड है, थिन वॉल्ड है, उसमें सेकुलाए हैं, डायवर्टिकुलाए हैं, नहीं है, उसमें स्टोन बन रहे हैं, नहीं बन रहे, उसके प्रेशर्स क्या हैं यूडीएस के ऊपर. दिस इज हाउ यू कैन असेस द ब्लैडर डिसफंक्शन. इफ देयर इज अ ब्लैडर डिसफंक्शन इन अ पेशेंट हु इज केप्ट ऑन द मेडिसिन, तो उसमें भी अब इन्होंने इंडिकेशन निकाली है कि यू शुड गो फॉर द सर्जरी, बिकॉज सर्जरी से क्या होगा, दैट इज गोइंग टू हॉल्ट द ब्लैडर डिसफंक्शन. जो ब्लैडर डिसफंक्शन ऑलरेडी हो गया है दैट इज अनलाइकली टू रिवर्स. अगर वो थिक वॉल्ड हो गया है तो वापस थिन वॉल्ड नहीं होगा. अगर उसमें डायवर्टिकुलाई या सेकुलाई बन गए हैं तो वो खत्म नहीं होने वाले, बट वो फर्दर साइज में इंक्रीज नहीं होंगे, ब्लैडर की कैपेसिटी पे फर्दर फर्क नहीं पड़ेगा और ये होगा. तो उसमें मेडिकल थेरेपी का रोल इस हद तक है कि अगर आपका वो फेलियर में जा रहा है या फिर डिस्पाइट ऑन द मेडिकल थेरेपी आपको लग रहा है कि ब्लैडर डिसफंक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि अगर आपके वॉइडिंग सिम्टम तो अच्छे इंप्रूव हो गए लेकिन जो इरिटेटिव जो स्टोरेज सिम्टम्स हैं जिसको लिए आप एंटीकोलिनर्जिक ऐड कर रहे हो बट फिर भी आपको जो है वो डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, सो दोज आर द पेशेंट्स इन जिसमें आप सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ TRP या जो भी सर्जरी है. बाकी इंडिकेशंस तो आप सबको समझ में आ रही होंगी कि यूटीआईज जो है, अगर आपका मेल का यूटीआई तो कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, ये आपको हम हमेशा से बताते आ रहे हैं, बिकॉज विद दिस मच लॉन्ग यूरिथ्रा एनवायरमेंटल एक्सपोजर इसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है तभी मेल में यूटीआई होता है. एंड हेमिचूरिया भी आपको बहुत कॉमन इंडिकेशन मिल जाती है अगर आप प्रोस्टेट क्लिनिक में हो कि पेशेंट्स आ रहे हैं, और उसमें आपको ज़रूर ये चीज़ देखनी है कि आप अगर पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट पर रख रहे हो, उसको सर्जरी ऑफर नहीं कर रहे हो, तो उसके क्या चांसेस होंगे कि नेक्स्ट टाइम जब उसको हेमिचूरिया होगा तो वो आपके हॉस्पिटल या टर्शियरी केयर सेंटर तक पहुंच पाएगा नहीं पाएगा. सो ऑलवेज बियर दिस थिंग योर माइंड वाइल डिसाइडिंग फॉर दिस पेशेंट्स. अगर एक मरीज है जो कराची में कहीं रहता है, सदर में रहता है, खानादर में रहता है, यहाँ पे रहता है, और वो आपके पास आ रहा है और उसको आप मेडिसिन ऑफर कर रहे हो, फॉलो पे रखना चाहते हो, फाइन इनफ. लेकिन यही पेशेंट अगर कोई कश्मीर से या बदीन से उठ के आपके पास आ गया है, माइट बी कि जब नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हेमिचूरिया हो तो वो हॉस्पिटल भी ना पहुंच पाए. सो ऑलवेज बियर दिस थिंग इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग फॉर दिस पेशेंट. Absolute contraindications as active. सॉरी, वापस लास्ट, ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी या आप इसको रीनल फेलियर भी कह सकते हैं. इसमें एक चीज को आपको डिफरेंशिएट करना है, जो BPH है या जो इनलार्ज प्रोस्टेट है ना, दैट इज जो उसमें रीनल फेलियर है वो बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ही होता है. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती है, ब्लैडर थिक वॉल्ड हो जाता है, आपके यूओ डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, अपर ट्रैक में हाइड्रो चली जाती है, मरीज रीनल फेलियर से प्रेजेंट करता है, आप ब्लैडर को डीकम्प्रेस कर देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 6 वीक्स या 3 मंथ्स में नेदर क्रेटिनिन आ जाता है, क्रेटिनिन दोबारा नॉर्मल चला जाता है, और माइट भी इमरजेंसी में आपको 1-2 सेशन डायलिसिस के भी कराने पड़ते हैं. और इन सर्टन केसेस इतनी शदीद हाइड्रो हो जाती है और इतना ब्लैडर डिसफंक्शन इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि डिस्पाइट पुटिंग ऑन ऑफ फोलीज अपर ट्रैक की हाइड्रो कम नहीं हो रही होती. इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियोस आपको एक CT करा के रूल आउट करना है कि कोई यूटेरिक स्टोन तो नहीं बन गया या कोई और कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है. अगर ऐसा नहीं है तो देन यू नीड टू डिकम्प्रेस द रीनल सिस्टम एज वेल. ओवर द लॉन्गर रन जब आप उसका प्रोस्टेट ट्रीट करने देंगे तो वो हाइड्रो भी रिजॉल्व हो जाएगी. बट दीज केसेस मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम दोज केसेस. अब एक पेशेंट है जो आपके पास OPD में आ रहा है जिसका क्रेटिनिन 2 का है, 2.5 का है, दैट इज सेकेंडरी टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड एनीथिंग लाइक दिस, और उसको भी आप इस खाते में डाल दें कि नहीं ये तो रीनल फेलियर है विद इनलार्ज प्रोस्टेट है, तो दिस इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज दैट रीनल फेलियर इज नॉट कॉज्ड बाय योर प्रोस्टेट. सो इसमें ये क्लियर कट इंडिकेशन नहीं बन जाती कि आप उसको सर्जरी करेंगे. उसको आप मेडिसिन पे या मेडिकल थेरेपी पे रख सकते हैं अगर वो पैरामीटर्स मीट कर रहा है. फॉर एग्जांपल उसका PVR इनसिग्निफिकेंट है, उसका Qmax अच्छा है, और वो क्रेटिनिन जो है वो स्टैटिक रह रहा है, वो आपके ब्लैडर की डायनामिक्स के साथ चेंज नहीं हो रहा. तो दोज आर द पेशेंट
which are not having the indication for the surgery, जो ऑलरेडी CRF है, लेकिन जो आपके ऑब्स्ट्रक्टिव की वजह से जा रहा है, तो उस पेशेंट में आप कोई ट्रायल नहीं देना है जो हम देते हैं अल्फा ब्लॉकर के बाद. दे आर क्लियर कट इंडिकेशन फॉर द सर्जरी. Usual contraindication is active urinary infection, inability to tolerate the general or spinal anesthesia, and severe cardiopulmonary disease and severe coagulopathies. Relative contraindications: prostate size greater than 150 gram, patient on chronic anticoagulation therapy, neurological condition affecting the bladder function, and pelvic radiation and severe comorbid increase. डॉक्टर प्रदीप, यहाँ एक सवाल जो हम रोज ओपीडी में डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो हमारी कदघन है 80 और 100 ग्राम की, ये कितनी वैलिड है आपके वहाँ सेटअप में? कि मतलब लोग फॉलो करते हैं इसको, या फिर वो स्टेज जाते हैं, या फिर दूसरे प्रोसीजर्स करते हैं जो आपके बड़े प्रोस्टेट होते हैं उनके लिए? TRP के हवाले से पूछो. आई थिंक यहाँ पर भी मतलब अप टू 100, मतलब यहाँ पे TRP ज्यादातर करते हैं, मतलब 80-90 में ना, वी डोंट ऑफर. अगर बहुत बड़ा प्रोस्टेट हो, जैसे ओवर 120 हो, तो उसमें फिर देन ओपन प्रोस्टेटमी या कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है. बट मेजोरिटी 80-90 तक तो जो है ना, TRP इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. दूसरा एक और मेरा सवाल था, आपने अभी लास्ट टाइम कहा कि यू सेड कि मेडिकल ट्रीटमेंट फेलियर. सो हाउ यू असेस मेडिकल ट्रीटमेंट फेलियर? व्हाट आर द क्राइटेरिया? सर, सबसे जो हमारी क्लिनिक क्लिनिकली तो वही है कि जो आईपीएसएस आप कर रहे हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं कि एट प्रेजेंटेशन क्या था और अब क्या है. सेकेंडली जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर पेशेंट कैथेटर पर आया है और वो कैथेटर फ्री नहीं हुआ आपके मेडिकल थेरेपी के बाद, तो ये भी एक वो है. थर्डली जो है वो आपके अगर क्यूमैक्स की somebody is एक बंदा है, if somebody is a new patient, ठीक है, आप he is 50 years old, और when you decide कि इस पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट देनी चाहिए अपफ्रंट, और when you decide कि दिस पेशेंट इज नॉट अ मेडिकल कैंडिडेट, इसको हम विल गो फॉर सर्जरी. सर, मेडिकल ट्रीटमेंट तो सबको ही देनी चाहिए अनलेस के एब्सोल्यूट इंडिकेशन बन जाए TRP की, जैसे हमने बता दिया कि स्टोन है, कोई एक्टिव हेमेचूरिया है उसमें, या फिर रीनल फेलियर के साथ आ रहा है. उसके अलावा तो सबको ही मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. देन जो असेसमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ना, उसमें हम बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं. उसमें आपका ये कि इनिशियल फॉलोअप 6 वीक्स पे हो, देन आप 3 मंथ्स पे उसको देख लें, एसेस कर लें ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स जो हमने आपको बताया, IPSS है, UFM है, PVR. At presentation, if somebody has high PVR more than 200, so would you still offer a medical treatment? So that is what I think. I believe we should not. ये criteria. If you choose a wrong patient initially, the chances that medical treatment would be failed. So आपकी assessment खाली ये नहीं होनी चाहिए. Right from the beginning, you need to assess your patient कि उस patient को कौन सी modality is he needed. Right. So अगर आप wrong modality choose करेंगे, the chances that you label this patient as a medical failure, but it is more likely he's not a medical treatment candidate. तो मेरे ख्याल में ये भी जो है ना, हमें decide करना पड़ेगा. 50 years old एक पेशेंट है, यंग पेशेंट है, और फर्स्ट प्रेजेंटेशन पे PVR 200 है. राइट. तो हम उसको मेडिकल थेरेपी की तरफ लेके जाएंगे या डायरेक्ट? तो ये अब आपके ऊपर काउंटर क्वेश्चन आता है, व्हाई PVR ऑफ, उसका इफेक्ट तो देखेंगे ना. व्हाई PVR ऑफ 200 इन अ केस ऑफ enlarged prostate? It is secondary to bladder dysfunction basically. Yes, bladder dysfunction. तो ये इतनी देर से जो हम कहानी पढ़े वो यही है कि अगर एक पेशेंट की प्रेजेंटेशन ही ब्लैडर डिस्फंक्शन के साथ है, तो अल्फा ब्लॉकर क्या करेगा? अल्फा ब्लॉकर से ट्रायल तो दे सकते हैं ना, हम देखेंगे कि उसका क्यूमैक्स में या PVR पे क्या इफेक्ट आता है. द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर जो डॉक्टर प्रदीप एम्फसाइज कर रहे हैं, या हम बता रहे हैं कि अल्फा ब्लॉकर का फंक्शन आपको पता है ना, वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? स्फिंक्टर को रिलैक्स कर रहा है, आउटफ्लो को खोल रहा है, ठीक है. दैट इज नॉट गोइंग टू गिव अल्टीमेट पावर टू योर डेट्रूसर कि भाई जा अब तू कॉन्ट्रैक्ट भी कर. सही है, दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ अल्फा ब्लॉकर, राइट. तो अब एक पेशेंट है जिसकी डेट्रूसर अंडर एक्टिविटी में चला गया, जो 200 का आपका यूरिन रख के बैठा हुआ है, अगर आप उसका आउटफ्लो को पूरा भी खोल देंगे और उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ही नहीं है, उसके डेट्रूसर में प्रेशर ही जनरेट नहीं होता, तो हाउ इज ही इज गोइंग टू अवॉइड? वो तो सर TRP के बाद भी जो डिसफंक्शन हो चुका है वो तो रिवर्स नहीं होगा, लेकिन रुक जाएगा, तो वो हॉल्ट हो जाएगा. सर यही मेरा क्वेश्चन है कि हम अल्फा ब्लॉकर एक ट्रायल तो देंगे ना, कम से कम यंग पेशेंट है, उसको सेक्सुअल फंक्शंस हैं, हम डायरेक्ट एक पेशेंट जिसमें ऑलरेडी एक ऑर्गन अफेक्ट हो चुका है आपके प्रोस्टेट की वजह से, उसमें आप ट्रायल क्यों देना चाहते हैं? यही तो प्रॉब्लम है. जब आप ब्लैडर डिस्फंक्शन की बात करते हैं, आप उसको इतनी सीरियसनेस से नहीं देखते जितनी आप रीनल फेलियर को देख रहे हैं. भाई रीनल फेलियर क्या है? किडनी का डिस्फंक्शन है ना, वो भी सही. वहां जब पेशेंट आ रहा है डिस्फंक्शन के साथ तो आप सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन जब ब्लैडर डिस्फंक्शन के साथ आ रहा है तो आप उसे फुल जो आपकी ट्रीटमेंट वो है वो ऑफर नहीं कर रहे. दैट इज द डिफरेंस. यही डॉक्टर प्रदीप के अब जैसे हमने रेज्यूम की बात करी, रेज्यूम में हमें डॉक्टर रबीउल्ला बैठे हैं यहाँ पे, नहीं याद होगा, वन ऑफ द केस, शायद वो 4th या 5th केस था जिसमें ब्लैडर बहुत गंदा था.
ब्लैडर के अंदर ट्रेबुकल आए थे, सेकुल आए थे, वॉल अजीब मतलब आप कह सकते हैं कि सिवियर किस्म की ट्रेबुकुलेशन थी ये वो। अब ये वो पेशेंट है जो आपकी आउटफ्लो जितना भी आप अच्छा खोल देंगे, ये दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड। इसको आपको ऑफर करना, आपने कहा टीआरपी के बाद, टीआरपी के बाद भी हम सीआईसी करवा रहे होंगे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ द एनलार्ज प्रोस्टेट आप सीआईसी कैसे कराएंगे उसको? सही है। या फिर आप अगर यंग पेशेंट है तो आप उसे ऑफर करें कि मेट्रोफिनॉफ दे सकते हैं हम आपको ये ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं, बट दैट विल कम आफ्टर के जब आपने उसका आउटफ्लो को खोल दिया। तो वन साइज फिट्स ऑल वाली बात यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ शोएब। जी सर, जी सर। जैसे ये कह रहे हैं ना, इफ समबडी हैज सिग्निफिकेंट 200 का पीवीआर है, यस यू आर राइट। देखें, आप जब आप पेशेंट से डिस्कस करते हैं ना मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस, यू ऑलवेज स्टार्ट विद द मेडिकल ट्रीटमेंट, आप बताते हैं, लेकिन ऑन द सेम टाइम यू आल्सो गिव योर असेसमेंट के भाई हमारी असेसमेंट ये है, सिंस कंसीडरिंग योर एज, कोमार्प्स, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड साइज, आपका पीवीआर, आपका क्यूमैक्स, यही सजेस्ट करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट माइट नॉट सक्सेसफुल इन दिस केस या इन योर केस, सो यू मे नीड अ फ्यूचर इंटरवेंशन। तो आप एक असेसमेंट अपनी दे सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि हमारी ट्रीटमेंट ऑप्शन फेल हो रहे हैं, यहाँ पे ये कि हमारी असेसमेंट कितनी अच्छी है। इफ आवर असेसमेंट इज गुड, तो हमारी मोडिलिटी जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो सक्सेसफुल होगा, वो उसके रिजल्ट अच्छे होंगे। इफ आवर असेसमेंट इज नॉट गुड, तो चांसेस हैं कि हम हमारी जो ऑप्शंस हैं वो फेल ही होंगे। तो अगर आप बिफोर यू नो ऑफर एनी ट्रीटमेंट ऑप्शन, अगर आप एक अपनी असेसमेंट बता देंगे ना पेशेंट को, तो ही वुड बी वेरी, आप उसको हेल्प करेंगे तो टेक अ राइट डिसीजन। दैट इज व्हाट आवर जॉब इज। ओके, और असेसमेंट जो है वो आपकी एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। सही है, ये नहीं कि मैंने और ये कि जी सर। ये कुछ समझ गए, क्लियर हुआ नहीं हुआ इनको? सर हो गया सर, हाँ, पॉजिटिव में सारे हिलाया है उसने। तो हमने लास्ट वीक भी मेरे ख्याल सेशन में बात करी थी कि अब एक यूएफएम में आपके पास इनिशियल प्रेजेंटेशन मरीज की आ रही है कि वो 7 का क्यूमैक्स बना रहा है, और आप में से ही किसी से मैंने पूछा था कि व्हाट आर द चांसेस कि ये एयूआर में जाएगा, तो 90% चांस है कि वो 3 मंथ से 6 मंथ में एयूआर में चला जाएगा। दैट इज प्रूवन, ठीक है, ये लिटरेचर बेस्ड है। तो और इसी तरह अगर 10 से 15 के बीच में क्यूमैक्स है तो समवेयर इट इज 60% एंड समवेयर इट इज 76% के ये चांसेस है कि ये एयूआर में चला जाएगा। अब वही बात है कि आप पेशेंट को ये ऑप्शन देंगे, ही माइट नॉट बी वांटेड टू गेट ऑपरेटेड ऑन हिमसेल्फ, तो आप उसे बता देंगे कि जनाब ये ऑप्शन है, आप दवाई भी खा सकते हैं, आप ऑपरेशन भी करा सकते हैं। अगर दवाई खाएंगे तो इतने % चांस है कि आपका पेशाब बंद हो जाएगा, आपको नलकी लग जाए इतने अरसे में, ये वो। तो जो हम एविडेंस की बात कर रहे हैं ना, ये जो आप पढ़ते हैं तो ये यूजलेस बातें नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। जब आप काउंसलिंग करने बैठते हैं या मरीज के साथ ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करते हैं, आई गेस दैट इज वाई पेशेंट इज हियर विद यू, वरना तो चैट जीपीटी पे सब लिखा हुआ है। तो उसी से पूछ लेता कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं क्या ट्रीटमेंट लूँ, तो दवाई भी दुकान से मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आपके पास इसीलिए आ रहा है कि आप उसके सारे ऑप्शंस बताएं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताएं, एंड देन कम आउट विद अ प्लान कि भाई आपके केस में ये करके देख लेते हैं, ट्रायल देके देख लेते हैं, मेडिसिन देके, सर्जरी देके। सो दैट इज हाउ थिंग वर्क। चलिए जी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस बता दी जी, वेरी गुड, बताइए। Incontinence is a non-complication Yes. after the TURP. So the patient What is the who percentage of incontinence after TURP? So ये जो any complication which is more than 1%, किसी भी सर्जिकल में, ये ब्रॉड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी भी सर्जरी में हमें हमारे किसी सीनियर ने बताया था कि अगर 1% से ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है ना, तो यू नीड टू काउंसल अबाउट दैट कॉम्प्लिकेशन टू द पेशेंट प्री। आपको सर्जरी से पहले उसको बताना है इसके बारे में। तो इसीलिए हम इनकॉन्टिनेंस के बारे में बताते हैं। ऐसा है ज़काउल्लाह? बताते हैं। चलो अच्छा, अब सवाल आपका। क्वेश्चन ये है कि ए ब्लैडर डिसफंक्शन टू होम वी आर डिसाइडिंग फॉर द TURP, यस, उनमें ये सिलेक्ट करना कि ये पेशेंट बाद में इनकॉन्टिनेंस में चला जाएगा, क्योंकि ये कैसे हम सिलेक्ट कर लेंगे पेशेंट्स को? तो दैट यू विल सेलेक्ट जिस क्राइटेरिया पे आपने ब्लैडर डिसफंक्शन सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि नहीं यार ये ब्लैडर मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं इसका यूडीएस कराता हूँ। ठीक है, आपने यूडीएस कराया, उसमें आया कि भाई ये तो फिलिंग के ऊपर जो है वो 30 पे पहुंच गया है इसका पीडेट, और वॉइडिंग के टाइम पे भी इसने जो है वो जनरेट तो किया प्रेशर, लेकिन वॉइड किया नहीं। और सेकेंडली जो कैपेसिटी बनी वो हार्डली थी 125-30 थी, उसके बाद इसने फर्दर टॉलरेट नहीं करा। सही है, अब ये प्रोस्टेट है और इसकी आप सर्जरी करने वाले हैं, तो फिर क्या होगा पोस्ट ऑप में? कॉन्टिनेंस में जाएगा। सो ये आप असेस कर सकते हैं पहले से। ठीक है, आप तो फिर सर्जरी करोगे नहीं करोगे? लेकिन सब हम हर किसी में या हर जगह सेटअप में यूडीएस तो नहीं करवा सक रहे होगे, ये तो हमारा आप हॉस्पिटल पीवीआर की बेस पे देख सकते हो, आप ब्लैडर डायरी की उस बेस पे देख सकते हो। जिस चीज को आपने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ ना, वो ब्लैडर डायरी है। आप पीड्स में तो एफवीसी यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं कर रहे। एक पेशेंट आपको आके रोज कहानी सुना रहा है, सर मैं रात में 6 मरतबा उठ रहा हूँ, दिन में 1-1 घंटे से पेशाब जा रहा हूँ, आपकी ओपीडी में आए हुए मुझे 3 घंटे हुए, मैं 6 दफा वॉशरूम जा चुका हूँ। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट?
ही इज हैविंग साइंस ऑफ स्मॉल, उसमें सिर्फ आपको उसका एविडेंस चाहिए। एविडेंस आपको मिलेगा बेटर डायरी से। आप उसे कहें कि यार आप जो 6 दफा जाते हैं, आप वहाँ पे यूरिन कितना पास करते हैं, 1 गिलास में करते हैं, आधा गिलास करते हैं, कितना, दैट विल टेल यू अ लॉट ऑफ अबाउट दिस। तो यूडीएस इज स्टिल अ फैंसी थिंग, ठीक है। आप आउट एसआईयूटी से बाहर निकल जाए तो अभी भी शायद 2 जगह हो रहे हैं जहाँ पे यूडीएस होता है, वरना नहीं होता। और लोग हाथ में पर्ची लेके घूम रहे हैं, यूडीएस करवाना है, यूडीएस करवाना है। सो उसकी मतलब उसके बगैर भी आप उसको वो कर सकते हैं, हिस्ट्री में उसकी फाइंडिंग में ये चीजें आप असेस कर सकते हैं। ब्लड डिस्फंक्शन असेस करना है वैसे। थिक वॉल्ड है, उसकी वॉल थिकनेस भरी हुई है। जो पीरियड्स में जो चीजें फॉलो करते हैं ना, वो एडल्ट में आके भूल जाते हैं लोग, मैंने देखा है। वो ऐसे ही है भाई, इंसान वही है, वहीं से बड़ा हुआ है। तो वो चीजें आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। दूसरा, अगर प्रोस्टेट का पहले कोई प्रोसीजर हुआ हुआ है या फिर रेडिएशन किसी पेशेंट को मिली हुई है, तो ये भी एक उसकी रिस्क फैक्टर है। फैक्टर है कि पेशेंट बाद में इनकॉन्टिनेंट हो सकता है। तो आप उसको उस लिहाज से फिर गाइड करेंगे। तो ये भी एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट। लेकिन बिलीव मी कि हमारे पास ज्यादातर अभी भी टेक्निकल इनकॉन्टिनेंट ज्यादा आते हैं। तो वो एक हर किसी उसका भी हम ऑडिट कर रहे हैं करना है इंशाल्लाह, फिर आपको सर्जरी के बताएंगे कि कितने टीआरपी आप हमने मिलके इनकॉन्टिनेंट किए, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू के ओपन प्रोस्टेट कम होने शुरू हो गए हैं, इनकॉन्टिनेंट टीआर ज्यादा इनकॉन्टिनेंट हुए हैं कुछ पिछले 2-3 महीनों में। तो वी आर लुकिंग एट इट। चले जी, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ये तो सबको आती है। पॉजिटिव कल्चर में टीआरपी हो सकता है या नहीं हो सकता? माय क्वेश्चन टू R3 FCPS एंड R1, 2, 3 MS कैंडिडेट्स, पॉजिटिव कल्चर में टीआरपी किया जा सकता है यानी कि डॉक्टर सईद आप जवाब दें इसका। कैन वी डू टीआरपी इन पॉजिटिव यूरिन कल्चर? एक पेशेंट है, उसके कल्चर में सीडोमोनास इकोलाई है, विल यू प्रोसीड फॉर टीआरपी, यस और नो? No, पहले we will treat the culture, then we will. ओके, आपने ट्रीट किया, दोबारा रिपीट कराया, दोबारा पॉजिटिव आया, नाउ व्हाट? जल्दी करो, टाइम खत्म हो गया है मेरा। ओके, समवन एल्स, you wants to answer? Doctors, Amir wants to answer this question. Sir, if the patient has symptoms of, let's say, active infection, then we cannot proceed for TRP. Sir, We have to resolve the infection, then we proceed. If the patient has colonization, then we can give 1 to 2 days of antibiotic trial. After that, we can proceed. Yeah. so basically he is actually right. So मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि पेशेंट को यूटीआई है। I told you the patient is having a positive culture. Indirectly, I was asking about ABU, asymptomatic bacteriuria. You know that most of these patients are catheterized. They having a colonizer in their urethra. तो उसमें आपको कल्चर पॉजिटिव आता रहेगा। आप उसको अगर पेशेंट का TLC सही है, वो सिम्टोमेटिक नहीं है, और आपने उसको एडिक्वेट अकॉर्डिंग टू योर आईडी टीम आपने एंटीबायोटिक दे दिया है, उसके ब्लड के अंदर एक लेवल मेंटेन कर दिया, यू शुड प्रोसीड फॉर इट। वरना तो आप ट्रीट कर दी। इसीलिए हमने तो पाबंदी लगाई है कि पॉजिटिव कल्चर के टीआरपी डीसी नहीं होना चाहिए यूरोपी से। 24 आवर एंटीबायोटिक इज इनफ। इफ यू आर प्लानिंग सम सर्जरी ऑन सैटरडे, तो उसको अगर 3 डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक मिल गई हैं तो यू कैन डू। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा आप देंगे तो आप उसको रेजिस्टेंट स्ट्रेन क्रिएट कर रहे हैं, और फिर शायद आपकी सर्जरी कॉम्प्लिकेट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। दैट इज व्हाट आर आईडी टीम से। Patient consent process is also ये सब तो इनको आता है आगे। spinal and general anesthesia. Spinal is the Why spinal anesthesia is preferred over general anesthesia? डॉक्टर अब्दुल करीम, why spinal? जल्दी से सामने लिखा हुआ एक पॉइंट बता दो। हाँ, तो अब एक का क्या फायदा? पेशेंट से गपशप करनी है, आपने क्या करना है बताएं। सो अर्ली साइंस पिक हो जाएंगे कि पेशेंट जो है उसमें और लिखा हुआ है, पढ़ के बता दो जल्दी से। इसके अलावा कोई फायदा नहीं है ऐसे एक्चुअली। सही है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट अनफिट होते हैं। उसके आप जब जीए देंगे, कार्डियक पैरामीटर, दूसरे पैरामीटर ठीक करना मुश्किल हो जाता है। स्पाइनल में तो चीज़ें मैनेजेबल रहती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसके पेन के लिए आपको कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता। उसका पेन जब तक स्पाइनल का इफेक्ट रहेगा, उसका पेन मैनेज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। TRP surgical. ये सब इनको आता है, आगे बढ़ो। Irrigation fluid, monopolar versus bipolar. Monopolar TRP use non-conductive fluid prepared glycine, sorbitol, and mannitol. Its key characteristics is a hypotonic solution, risk of fluid absorption, and potential for dilational hyponatremia. In bipolar TRP, we use a conductive fluid safe to use, normal saline 0.9% isotonic solution. It's eliminate the TRP syndrome risk, no dilational hyponatremia, enhance safety profile, and standard monitoring sufficient. Same. These are step-by-step. आगे next. Key step of work proximal to the verumontanum. Stay systematic, one zone at a time. Low pressure, continuous irrigation, hemostasis between each phase. Identify the. So एक पॉइंट का रीजन आप में से कोई एक देते हैं। Why we need to work proximal to verumontanum? सही है, तो आपका एक एनाटॉमिकल लैंडमार्क है। देयर आर हाई चांसेस कि यू आर गोइंग टू द डैमेज द मसल फाइबर्स ऑफ योर एक्सटर्नल स्फिंक्टर, राइट? Stay systematic, one zone at a time. Dr. Alia, why is it so?
जहां से दिल मिले जहां बड़ा मिले काट दो, ये सब करने की क्या जरूरत है? सो एनीवन, डॉक्टर कयूम, साइडों को काट दें तो वो रिफ्रैक्टरी ब्लीडिंग और जंबल वन ऑफ द रीजन। और यूआर के चांसेस ज्यादा होंगे। TUR के चांसेस डिपेंड्स ऑन योर टेक्निक समहाउ, लेकिन इसमें कोई इतना ज़्यादा फिट नहीं बैठता। सो बेसिकली ये है कि आप अपना प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन, पेशेंट रेडी में चला गया, कुछ हो गया, वो हो गया, तो आपको आगे कम्युनिकेट करना इजी है कि आई वाज ऑन द लैटरल लोब और मैंने सिर्फ वहीं पे डिसेक्शन करी है, तो कि नेक्स्ट टाइम जो जाए तो वो बाकी चीज़ों को। और सम टाइम आपको पता है कि प्रोस्टेट इतना ह्यूज होता है कि आप पहले ही प्रीएम्प्ट कर लेते हैं कि आई विल नॉट बी एबल टू डू कंप्लीट सर्जरी टुडे, और शायद मुझे सेकंड सिटिंग करनी पड़े वो। फॉर दैट रीजन भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हेमरेज वाली बात है ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जहाँ मैंने काम किया है यहाँ से ही ब्लीड हो रहा है, तो यू भी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। आपको लग रहा होता है ब्लीडिंग राइट से हो रही है, लेकिन वो बेसिकली रिफ्लेक्ट होके लेफ्ट से आ रही होती है, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। लो प्रेशर कंटिन्यूस इरिगेशन, व्हाई लो प्रेशर, व्हाई नॉट हाई प्रेशर? सो हाई प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज द फ्लूइड एब्जॉर्प्शन। फ्लूइड एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही है? वीनस चैनल, जो आप प्रोस्टेट काट रहे हैं, वीनस चैनल्स खुल रहे हैं, उसमें से एब्जॉर्प्शन हो रही है। hemostasis between each phase, identify capsule fibers. What is the significance of identifying capsule fibers? It cannot be resect beyond the capsule. एक तो ये कि अपनी हद से बाहर ना निकल जाए, और दूसरा ये कि हद तक पहुंचे। दैट इज व्हाट रेडिकल TUR इज, कि आपको प्रोस्टेट को इतना काटना है कि कैप्सूल फाइबर्स आपको दिखें। ये जो आधा अधूरा सा है ना, वो चैनल के खाते में आता है। दैट इज नॉट TUR। ऑपरेटिंग टाइम होगा, नेक्स्ट करो भाई। This is a short video. चलो बस सही, आगे चलो सर। 5 मिनट। तो ये जो टेक्निक्स हैं आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, घर पे याद करके आइएगा। नेक्स्ट टाइम आपसे जो आपका एग्जाम हम लेंगे ना, ग्रैंड टेस्ट, उसमें इंशाल्लाह इन सब टेक्निक्स पे एक सवाल हम बनाएंगे। ब्लेंडी, बांस, मरमर और नेस्बिथ, ऑल टेक्निक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।